السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ آغا اور اب دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے آسٹیرٹی کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی اور اس آسٹیرٹی کیمپین کو لے کر جو کھلاڑی ہیں وہ کافی کامیاب رہے اب تک۔ دوسری جانب جو چیئرمین نیب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ریفرنسز کی ان کی کچھ بات کریں تو ایک ان کی کنٹروورشل ویڈیو کے بعد جو ریفرنسز تھے وہ تو اب ذرا اس کے بارے میں بات کم ہو رہی ہے، لیکن ارشد ملک کی ویڈیو لیک ویڈیو کے بعد اب تمام تر جو نظریں ہیں وہ ان کے کیس کے حوالے سے ہیں۔ کیا ان کا فورنسک ہو پائے گا؟ پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان کی ویڈیو کا فورنسک ہو جانا چاہیے، لیکن دوسری جانب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا ایتھکس تھی ان تمام تر چینلز کی جنہوں نے یہ لائیو کوریج دکھائی بغیر جانے پہچانے اور اس کی اوتھینٹسٹی کے بغیر انہوں نے اس کو ایئر کیا؟ دوسری جانب یہ جوڈیشل نارمز کے بھی خلاف ہے جو تمام تر سینیریو وہاں پہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے اس وقت سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، اس وقت وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ صادق سنجرانی کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کی صادق سنجرانی کے خلاف جو ہے ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کیمپین جاری اور ساری ہے، لیکن دوسری جانب صادق سنجرانی کہتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے نہیں ہٹیں گے۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے اور اب انہوں نے فائنلی سوچ لیا کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گے۔ یہ اب تک کا ان کا سٹانس ہے۔ فاٹا کے جو آزاد ارکان ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی نہ ہوں۔ دوسری جانب اگر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں تو ان کے حکم کے بعد تمام تر قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ اس طرح اجلاس منسوخ کرنے سے قائمہ کمیٹی کے یہ جو پارلیمانی روایت کے خلاف ہے اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ کیا یہ واقعی ان لافل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے؟ پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اور تمام تر جو ملکی سینیریو ہے پاکستان میں اس وقت اکانومی کے حوالے سے کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ ملک کی لوٹی ہوئی دولت کے حوالے سے جو ہے کھلاڑی بالکل پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، ریفرنسز چل رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر ادارے آٹونومس ہیں، کوئی حکومت کا انفلوئنس اس کے اوپر نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے تنزیلہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے منصور شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے صادق رضوی صاحب تجزیہ کار۔ آپ لوگ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ تنزیلہ، آپ سے جاننا چاہوں گی صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے، آپ کی کیمپین کافی سٹرانگ دکھائی دے رہی ہے، لیکن دوسری جانب وہاں پر ان کی جو سپورٹ ہے فاٹا کے ارکان کی، آزاد ارکان کی، وہ ان کے ساتھ ہے۔ جو دوسرے اتحادی ہیں وہ بھی ان کو یہ ایڈوائز کریں کہ آپ اپنی پوزیشن سے مستعفی نہ ہوں، لیکن اس وقت جو ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ ان کے خلاف کافی سٹرانگ ہے معاملہ۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ بات کرنے کے لیے۔ پہلے تو میں نہیں سمجھتی کہ اب سنجرانی صاحب کے پاس یہ چوائس رہ گئی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں یا نہ دیں۔ اب یہ فائنل ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں کلیئر۔ اگر صرف ہم کوئی بھی اور ارکان نہ بھی لیں، پھر بھی نون لیگ پیپلز پارٹی کا صرف 2 پارٹیز کو ہی اگر آپ پلس کر لیں تو سنجرانی صاحب کی مرضی تو کہیں پہ بھی چلتی ہوئی نہیں دکھ رہی۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں جو ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ایک نمبر ہے، جو فگر ہے، وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے صادق سنجرانی کے خلاف ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹانے کے لیے، لیکن ان کے جو ایلائی ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں۔ فاٹا کے جو آزاد ارکان ہیں وہ بھی ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن پہ کھڑے رہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے اگر ان کے اتحادی اکٹھے ہو جائیں، فاٹا کے ارکان اکٹھے ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے نمبر بریک ہو جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے بالکل نہیں لگ رہا، کیونکہ جس طرح کی کنڈیشن بنائی گئی ہے، جس طرح کا سینیریو بنایا گیا ہے، مجھے تو یہ نمبر ہر طرح سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، شیئر کی کنڈیشن دیکھ لیں، اگر میں صحیح ہوں تو کل شاید کوئی بہت بڑی اسٹرائک ہونے جا رہی ہے۔ کوئی پیا جام وغیرہ بھی اناؤنس ہو گیا ہے، کچھ میں نے میسیجز میرے پاس آئے کراچی میں، تو ہر جگہ سے اتنا پریشر بڑھ رہا ہے کہ اس حکومت کے طرف تو مجھے کہیں سے بھی نمبر بڑھتے نظر نہیں آ رہے۔ تنزیلہ، ہاؤ ڈو یو سی دس سینیریو کہ اس وقت پاکستان میں اتنے کرائسس آ رہے ہیں اور اگر تاجر برادری اسٹرائکس کر رہی ہیں تو کیا کہیں نہ کہیں آپ کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا، کیونکہ ماضی میں حکومتیں تو آپ ہی لوگوں کی تھیں، تو کیا آپ لوگ کا عمل دخل ہے؟ کیا آپ لوگوں نے ویک کیا اتھارٹیز کو، انسٹیٹیوشنز کو، سسٹم کو؟ یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ حالت ہو چکی ہے ملک کی۔ اب آپ لوگوں نے کی ہے، ہم نے حالت کی ہے۔ یہ تو 10 مہینے سے بیچارے یہاں ہیں۔ یہ 10 مہینے یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے ہم بڑا ہوم ورک کر کے بڑی تیاری سے آئے، اور ہمارے آتے ہی ہم نے اتنے بلینس ان کو منہ پہ مارنے ہیں، ملک کو سیٹل ڈاؤن کر دینا ہے۔ یہ ذرا پریکٹیکل باتیں نہیں تھی، اب احساس ہو گیا ہوگا۔ یہ پریکٹیکل باتیں نہیں تھی۔ ایک ہفتہ 3-4 دن پہلے ابھی جو میڈیا پہ مریم بی بی کی چلی تھی، کلپ چلائی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے سارے جو وزراء وغیرہ کود پڑے تھے کہ ابھی یہ سب فیک ویڈیو ہے۔ کوئی
कुछ किसी को पता नहीं था, उन्होंने खुद ही कह दिया कि डिसाइड कर लिया फेक वीडियो है। लेकिन तंजीला ये बात आप मुझे बताएं, देखिए क्या आपको लगता है एक महज़ब मुआशरे में या फिर एक सेंसिबल मुआशरे में एक वीडियो आ जाए, आप उसको बगैर मतलब आपको पता ही नहीं है कि ना मैं जानती हूँ ना आप जानती हैं कि वो वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं, टेम्पर हो सकती है वीडियो, किसी वीडियो को टेम्पर करना मुश्किल नहीं है, जिन सर्कमस्टांसेस में वहां पे जज साहब बैठे हुए थे, तो क्या ये बनता था आपने खुद ही कहा ना कि हो सकती है। हमारी पार्टी की तो क्लियर मौक़िफ़ था कि ये जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है और जुडिशरी को चाहिए कि इससे खुद क्लियर करें। वो हमने ये नहीं कहा था कि ये सच्ची है, हमने ये भी नहीं कहा था कि ये झूठी है, हमने खुद से कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं दे दी। लेकिन आपको लगता है ये रिवायत डालना दुरुस्त है? इस तरह तो बिल्कुल जंगल का कानून नहीं हो जाएगा कि जो भी आएंगे इसी तरह आजकल जो रिवायतें जजेस के खिलाफ आ जाएंगे, आजकल जो रिवायतें डाली जा रही हैं, आजकल जो एहतसाब के नाम पे जो रिवायतें डाली जा रही हैं, आपको लगता है कि वो रिवायतें होनी चाहिए? आपको लगता है कि इन रिवायतों से मुल्क मजबूत होगा? आपको लगता है कि इससे इदारे मजबूत होंगे? मंसूर साहब से जानते हैं। मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में मैं वापस बात लेकर जाऊंगी सादिक संजरानी साहब के हवाले से, क्योंकि इत्तेहादी उनके साथ हैं, इत्तेहादियों ने उनको मशवरा दिया है कि आप अपनी पोजीशन से मुस्ताफी ना हो, खड़े रहें, डटे रहें अपनी पोजीशन पर। क्या आप लोग नंबर बना पाएंगे उनकी फेवर में? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहले तो तंजीला ने ये कहा कि हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं अब पैदा होंगे, नई प्रेगनेंसी होगी और बच्चे पैदा होंगे और नए सेनेटर्स होंगे। बात देखें, ये जमहूरियन का हक है कि वो, मगर इनकी पीपल्स पार्टी की रवायत रही है अपने बंदे को बलि चढ़ाते हैं। ये किसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर रहे हैं जी? इनका ही लाया हुआ चेयरमैन है, इनके वोट से बना हुआ है, इनके वोट से बना हुआ है, ठीक है। अब आके जो है ना, वो ये अपने बचाव के लिए दुश्मन से मिल जाते हैं, ये तय करते हैं कि ज़्यादा दुश्मन कौन है, कम दुश्मन कौन है। अभी नवाज लीग के गले लेके कि जिन सादिक संजरानी साहब को अगर मुस्ताफी करा देते पोजीशन से, तो क्या फायदा क्या होगा इसमें ऑपोजिशन को? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं ना, गवर्नमेंट का क्या नुकसान होगा? कोई नहीं। जो जमहूरी रवायत है, ये जमहूरियत का रूह है, जिसकी नंबर गेम है उसको आना चाहिए, उसकी ना हम मुखालफत करते हैं। सादिक संजरानी एक अच्छा सीरियस जो है ना चेयरमैन सेनेट है, और जिसकी लाइकिंग आना शुरू हो गई है जब उसके खिलाफ एक मूवमेंट चली है। तो जो इंडिपेंडेंट है, देखो फैसला उनको करना है, और विद इन द नवाज लीग भी रिफ्ट है। मैं आपको बता दूं जी, विद इन द नवाज लीग के आप पीपल्स पार्टी के साथ जिन्होंने इनको लाया था, इनको कल आपके साथ ही ये नहीं रहेंगे, कल आपको उतारेंगे। तो जो अंदर उनके पास जो सीरियस लोग हैं, जो सही समझते हैं सियासत को, वो भी मुझे अंदाजा है कि माजी में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के खिलाफ केसेस खोले, फिर पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के, मतलब ऑपोजिट एक दूसरे के खिलाफ केसेस रहे हैं माजी में। देखिए, आप 90s की बात कर रही हैं, उसके बाद एक चार्टर डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ लुटेरा जो है ना, लूट मार का चार्टर एक साइन हुआ, जिसमें कहा अभी मिल के लूटेंगे। अब चंगू मंगू हो गए, है ना, और नूरा कुश्ती शुरू कर दी एक दूसरे को, और इदारों की बात करती हैं। इनके चेयरमैन का बयान है, आप सारी टीवी पे चला, कौन होता है, मजाल है चेयरमैन नेब की, ठीक है ना। तो ये इदारों को इन्होंने हमेशा कमजोर किया है। क्या होता है जब इदारे कमजोर होते हैं ना, तो करप्ट लोगों को लूटने का मौका मिलता है। अरशद मलिक जो हैं जरदारी साहब के केस भी देख रहे हैं, फरियाल तालपुर साहिबा का जाली अकाउंट्स केस भी देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे अहम केसेस उनके सपोर्ट किए गए हैं। क्या इसलिए उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया? पहले चेयरमैन नैब को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, फिर अब कितना भी कंट्रोवर्शियल बनाए, एक तो मीडिया का भी रोल अपना सही प्ले। आप वाली बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जब तक ऑथेंटिक वीडियो, टेम्परिंग ये सोसाइटी है, जब तक ऑथेंटिक वीडियोस न हो, फॉरेंसिक न हो, उसके बाद रिलीज होता है। ये मजाक बन जाएगा, ये तो मीडिया नहीं हो जाएगा, मजाक ही हो जाएगा। इनको देखें ना, मैं आपको बताऊं, इनको ये गुर आते हैं। मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि क्या मीडिया के ऊपर, एक सेंसिबल मीडिया कोई का ये काम बनता है कि वो इस तरह वीडियो की ऑथेंटिसिटी के बगैर कोई भी वीडियो चला दें, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उसका एजेंडा जाने बगैर चले जाएं वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेटिंग गेम के लिए? और क्या एक सेंसिबल मीडिया वाकई जो है उसको इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल अब रखना होगा? इट्स हाई टाइम। इस पर जानूंगी मैं मंसूर साहब से। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो जस्टिस को एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी बना देना और ये प्रेजुडिस जो हुआ है रिसेंटली, क्योंकि बहुत सारे अहम केसेस उनके सुपुर्द हैं, अब उनको कंट्रोवर्शियली एक निगाह से देखा जाएगा, उनके जो केसेस हैं उसके ऊपर एक अलग सोच से उनको देखा जाएगा, तो ये केसेस के ऊपर असरअंदाज होंगे कहीं ना कहीं पर। तो ये एक गलत फेल था जो कि किया गया, बिल्कुल एक गलत तरीक़ाकार था। मैं मंसूर साहब के लिए सवाल ही छोड़कर गई थी कि क्या वाकई ये सही प्रैक्टिस है, और अगर पॉलिटिशियंस ऐसी प्रैक्टिसेस को लेकर आएंगे सामने तो हम अपनी वैल्यूज को खो बैठेंगे। जी सर। देखिए, जो लाए हैं वो भी गलत लाए हैं, मीडिया ने भी इसमें गलत रोल प्ले किया है। जी। पहले तो उसकी ऑथेंटिकेशन चाहिए जी, ऑथेंटिसिटी इज नंबर 1। उसके बावजूद भी फिर मीडिया पे नहीं आना है, उसके इदारे के हेड को भेजना है कि आप इसकी इंक्वायरी करें, हमारे पास ये आया है। जी। ये इखलाकियात है। ये बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। ये तरीकेकार भी ये है, तो ये गलत हुआ है। और जो है इसको सबको इस पे सोचना चाहिए कि गलतियां जो है ना दोहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें इनका नवाज लीग का और इनका तरीक़ेकार ये रहा है कि इदारों पे किसी न किसी तरीके से हमला करें। आप देखिए जजेस पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने दे मेड हिस्ट्री कि जी जजेस पे सुप्रीम, आपकी कभी सोच में भी नहीं था कि सिविल जज पे भी हमला हो, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ और वो इनको हजम हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हजम हुई हैं, तो ये इनकी आदत में हुआ है, ये इनकी ग्रूमिंग ऐसी है। जब ग्रूमिंग ऐसी है, अभी वो ज़माना नहीं रहा जो 90s का था जो ये हजम करे, इनको हिसाब देना होगा। ठीक, इनको हिसाब देना होगा। सादिक, आप क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो पे? हम बात कर रहे थे सादिक संजानी साहब के हवाले से कि उनके इत्तेहादी उनके साथ है, वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि आपने यहीं पर अपनी पोजीशन पर रहना है। फाटा के आज़ाद अरकान जो हैं वो भी उनसे यही कह रहे हैं कि उनकी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उनकी कैंपेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और जो 45 अरकान उन्होंने जो है मंजूर कर दिया है, और वो ये कहते हैं कि वो इनको पोजीशन से हटा के रहेंगे। क्या इस करंट सिनेरियो में आपको दिखता है कि क्या अपनी पोजीशन को बिल्कुल मेंटेन कर पाएंगे सादिक साहब, या वो अपनी पोजीशन से हाथ धो बैठेंगे? देखें, पॉलिटिकली स्पीकिंग संजरानी साहब मुझे लगता है अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेंगे। अच्छा। वजह ये है कि पीटीआई के पिछले भी पार्लियामेंट में जितनी भी वोटिंग की बातें हुई थी वो किसी ना किसी तरीके से उसको क्रॉस कर गए और अपने फेवर में फैसले ले गए, क्योंकि हुकूमती जमात है और हुकूमती जमात से अंदर ही अंदर लोग कुछ बात करके रखते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन एंड टाइम पे वो आप ये कह लें जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, या उनको सही लगता है लेकिन वो आगे उसको, क्योंकि ऑपोजिशन की जानिब से भी ये कहा गया था। जी, देखिए हम कोई जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया की बात नहीं है, विद इन द नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो इसको ठीक नहीं समझते, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस तरह की मुलाकातें हम कर रहे हैं वो सकता है इस तरह हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है, तो ये मतलब इनका कहना है कि जिस तरह की हम पॉलिटिकली देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस है। कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि पार्लियामेंट में सियासत हो रही है, तो पार्लियामेंट में और क्या होना है? अगर सियासत नहीं होगी तो और क्या होगा? सियासत तो होनी है, लोग बातचीत करते हैं अपनी किसी इशू पे। अगर कोई एक पार्टी मेंबर जैसे पीपल्स पार्टी का या किसी और पार्टी का मेंबर अगर संजरानी को बेहतर समझकर उसको सपोर्ट कर रहा है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में ही है ये प्रॉब्लम। ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो वोटिंग होती है सीक्रेट होती है, तो पता नहीं होता कि किसने किसको वोट किया, इसीलिए भी ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है। इसमें यही, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि जोड़ तोड़ की जो बात जब ये आप ये कह दें कि एक तरीके से नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होती है ना, ये हमें इसको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ तोड़ हो तो आपके जमहूरियत के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बात जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कर रही है, माजी की हुकूमतों में जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और हॉर्स ट्रेडिंग की जो टर्मिनोलॉजी है यहीं से निकली थी। इससे क्या मांगा? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि माजी की बातों को छोड़ें, क्योंकि अभी आज भी पीटीआई का जो मेन खबरें पूरे दिन चलती रही हैं वो यही थी कि पुरानी वजीर आज़म ने इतना खर्चा किया, प्रेसिडेंट ने बाहर जाने पे इतना खर्चा किया। देखें वो चीजें हो चुकी हैं। सादिक, वो इसलिए वो क्या इसलिए हाईलाइट नहीं हुई ऑस्टेरिटी कैंपेन के लिए, क्योंकि आपने अभी इस वक्त बात की कि पुराने वजीर आज़म या सदर ने इतना खर्चा किया, उस सारे खर्चे को काफी
पूरा ब्रेकडाउन करके आवाम को बताया गया है। आवाम को इमीडिएट ठीक रिलीफ है, नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आवाम को इमीडिएट रिलीफ दें। का जो एक्शन है, स्पीकर कौमी असेंबली ने जो अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि कायमा कमेटियों के इजलास को मंसूख कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी कहती है कि कायमा कमेटी के इजलास मंसूख नहीं होने चाहिए, ये जो रिवायत है गैर पार्लिमानी है, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये भी एक ऐसा प्रोसीजर है जो अपने ड्यू कोर्स से होता हुआ कहीं ना कहीं इख्तिताम हो जाएगा। और पीटीआई भी एक जमहूरी जमात है। जो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई किसी की बैकिंग से है, देखें अगर है तो सब बैकिंग से थे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई बैकिंग के बगैर हो। वो भी वोट लेके आए हैं। पीटीआई के करोड़ों सपोर्टर्स हैं। सोशल मीडिया के अलावा भी जलसों में कौन आता था? मैं हमेशा कहता हूँ जलसों में भी तो इंसान ही आते थे, पाकिस्तानी आते थे। तो सपोर्टर्स हैं वो भी जमहूरी जमात हैं। आप इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें कि जमहूरियत को खतरा हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। एक पार्टी है, उसको मौका मिला है, 5 साल उसको चलाने दें। मुश्किलात आ रही हैं, हो सकता है 2 साल बाद वो मुश्किलात कम हो चुकी हों, वो मुश्किलात ना हो। आप इस किस्म के एलिगेशंस ना लगाएं कि वो आगे जाकर मुल्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये जमहूरियत के दावेदार जरदारी साहब, नवाज शरीफ, उनकी बेटी। कायमा कमेटियों के इजलास के हवाले से क्या कहना है आपका? क्योंकि वो ऑस्टेरिटी कैंपेन को मद्देनजर रखते हुए जो है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम ऑस्टेरिटी कैंपेन का सोच कर ये नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब पार्लिमानी इजलास हो तभी ये कमेटियां बैठें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो सिर्फ सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है और मैं ये कहता हूँ कि जो रूलिंग पार्टी इस वक्त है उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। अगर आप ये समझते हैं कि अपोजिशन में बैठकर अपनी सारी बातें मनवानी है तो ये तो कहीं भी नहीं होता। चलती तो रूलिंग पार्टी की है ना। मतलब इसमें कोई आप कहते हैं कि कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जब आप हुकूमत में आए, अगर अल्लाह ने मौका दिया, दोबारा आवाम ने मौका दिया, सबसे पहली बात आवाम की है। अगर आप इलेक्शन जीत गए अगली दफा तो आप जो चेंजेस लाना चाहे ले आइएगा। किसी को हुकूमत मिली है, वो कोई काम करना चाह रहा है, उसको करने तो दें। ठीक है, तंजीला से जानते हैं। तंजीला, आप क्या कहेंगी इस पर? ये क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से कहा गया गैर पार्लिमानी रिवायत है और ये नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल। तो आखिर आप लोग क्यों कह रहे हैं? मेरी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। मैं उससे सिर्फ आपको वाज़ेह तौर पे ये बताना चाहूँगी, आप सब जानते हैं कमेटीज़ एक अलग से एक बिजनेस होता है पूरा। आज जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, बिलावल साहब ने, कि आज उनको कमेटी की मीटिंग थी जिसमें इंसानी हुकूक के बारे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस होना थी, उसे हम अटैच कर दें असेंबली सेशन के साथ। असेंबली सेशन एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब अब तय हो गया कि जब असेंबली सेशन होंगे तब ही कमेटीज़ की मीटिंग होगी। ये तो इस तरह से हम इसका कोई सब्स्टिट्यूट आप लोग के पास नहीं है? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता इसका? नहीं, इसमें ये तो गवर्नमेंट को सब्सिट्यूट निकालना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि शिकायत आपको है, उन्होंने आपको शिकायत है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमेशा अब क्यों हर आपका जो एक्शन होता है वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देता है। आपने पहले दिन से आज तक कोई मसला हल नहीं किया, हर नए दिन आपका नया पंडोरा बॉक्स आप खोल देते हो, हर दिन आप नए मसला ये मैं आपको एक सोर्स की बात भी नहीं है, ये एक पर्सनल मेरी देखी हुई बात है। गवर्नर हाउस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो गवर्नर हाउस में आज से पहले जितने भी गवर्नर सिंध रहे हैं वो पूरी फैमिलीज के साथ रहा करते थे, लेकिन गवर्नर इस्माइल वाहिद गवर्नर है सिंध के, जो कि सिर्फ और सिर्फ आते हैं वर्किंग आवर्स में, यहाँ पर खुद भी यहाँ पे नहीं रहते हैं। और जो इस साल जो वहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई थी वहाँ पे सहाफियों का प्रोपोर्शन इतना सा था, लेकिन सब बैठे हुए बात कर रहे थे कि ये देखें ये तो पूरी मेज खाली है, पूरी कुर्सियां खाली हैं, ये तो पहले तो यहाँ से वहाँ लगातार ये तो मसला ही नहीं था। ऑस्टेरिटी कैंपेन की बात मैं आपको ऑस्टेरिटी बता रही हूँ ना, यानी हमारे अवाम के पैसों पे वो लोग रहा करते थे, अयाशी करते थे, एक महल में रहते थे, अंग्रेज के बनाए हुए महल में रहते थे। अब उसको सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। महल को कुछ और बनना था, लेकिन उस महल को कुछ और इजाजत नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? आप इजाजत नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, आज आप एग्री करें तो हम आपको दे दें। आपने अपने बाकी सारे जो महलात थे, आपने जो सारे महलात जो हैं उनको आपने यूनिवर्सिटीज बना लिया। आपको नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। डिसिप्लिन्ड लोग हैं और इन्होंने हमेशा अवाम के पैसों पे अयाशियां की है। ये 10 साल का काम अब ये चोर डाकू बस बहुत हो चुका है। आप ये कह रहे हो, अभी आपने उधर ही जा रहे हो। पता था ना कि चोर तो नहीं, आपने 10 महीनों से आप यही कह रहे हैं, पुलिस वाला 10 महीने से आपने यही कहना है। और आपने 10 महीनों में आप लोग ऑस्टेरिटी कैंपेन को सीरियस नहीं ले रहे ना, आप लोग कह रहे थे
प्रोग्रेस को नहीं देख रहे, आप कमेटीज की अहमियत को नहीं देख रहे। मैं आपकी दोबारा आपकी अर्ज करूं, ये कह रहे हैं कि जी आपने तो इनको और प्रोटेक्ट किया कि गैर पार्लियामानी है जी, मुझे तो पता चला ये कहते हैं गैर आईनी भी है जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप इसी वक्त कोर्ट में चैलेंज करते तो ऑर्डर आ जाएगा। वैसे तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन हाफिज कुरान की तरह याद है, जब इन पे आ जाती है तो फिर भूल जाते हैं। तो अगर आपको याद है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं बीबी, इसका जिक्र ही नहीं है। मैं आपको देखो ना, बात ये है कि ये जो है ना, अगर उन दिनों में करें तो क्या हर्ज है। उस एक दिन के इजलास के लिए 5 दिन का आपकी नीयत कुछ और है, 5 दिन का TADA मिलता है। ये मेंबर साहिबा हैं, इनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, सिटिंग MP हैं, इसको पता है कि एक कमेटी के एक दिन की मीटिंग के लिए कितने दिन के मिलता है आपको। तो आप इस पे कंप्रोमाइज करें, मुल्क अच्छे हालात में नहीं। देखें इस वक्त गवर्नेंस का कोई मसला नहीं है, चोरी चकारी का कोई मसला नहीं है, किस बेस का कोई मसला नहीं है। देखें इकोनॉमी हमारी जो देखे गए हैं सिर्फ फाइनेंशियल मसला है इस मुल्क को, क्योंकि वो खजाना खाली था। वो खजाना सिर्फ खाली नहीं था, वो जो चोर आते हैं ना तो घर को दीमक से कमजोर भी हो चुका था, वो धतोड़े मार के जो है ना उसको तोड़ फोड़ भी करके गए, सामान नहीं लेके गए। अभी तो हम उसको ठीक करें, रिपेयर कर रहे हैं, फिर सामान डालेंगे, इसीलिए आवाम की चीखें निकल रही हैं रिपेयर करने के लिए। ठीक है सादिक, आप जिस तरह आपने भी कहा कि इसमें कोई इशू नहीं है, अगर ये गैर पार्लिमानी है हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरह मंसूर साहब भी कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आइन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर अपोजिशन को इशू है तो क्या ऑल्टरनेट अपोजिशन खुद निकाल सकता है इसका? मैं आपसे इसका जवाब जानूंगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सादिक संजरानी साहब के हवाले से, और मैं जो है सवाल छोड़कर गई थी सादिक साहब के लिए कि सादिक साहब आपका क्या इस तमाम तर सिनेरियो पर ख्याल है कि क्या कोई और सब्स्टिट्यूट अपोजिशन लेकर आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली कंसर्न भी अपोजिशन का है। देखिए अपोजिशन पार्टी को लाजमी बात है पार्लियामेंट में रहकर अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन हर मामले पर ऐसा जाहिर कर देना या ऐसा इशू बना देना कि हर चीज़ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या प्रॉब्लमेटिक है, कानून के खिलाफ है। देखिए कुछ चीज़ें पहली दफ़ा भी होती हैं, अगर वो बेहतरी के लिए हैं, अगर उससे पैसे बच रहे हैं, अगर उससे टाइम बच रहा है। ऑपोजिशन इस वक्त अवाम को गुमराह कर रही है बहुत सारे इश्यूज पर, बहुत सारे इश्यूज पर ना सही लेकिन कुछ इश्यूज पे तो कर रही है। देखें अगर ये चीज़ें ठीक करके गए होते तो आज PTI क्यों आती हुकूमत में? सबसे पहली बात तो ये है, खराब करके गए जब भी तो लोगों ने कराची ने 12 सीटें दे दी, 14 सीटें दे दी, क्यों दी? आउट ऑफ 21 जी, इसी वजह से ना कि थक गए थे जी, नई चीज आए, नए लोग आए। कराची के तो मसाइल का तो अंबार है अभी भी, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि का इशू देख लें, पानी का इशू देख लें, कौन सा इशू एक्सपेक्टेशन पे अभी भी पूरा नहीं उतरी, क्योंकि PTI कर भी नहीं सकता ना लेकिन कुछ। टाइम हाँ यहाँ तो करना है तो MKM पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने मिलकर करना है सबसे ज्यादा जो। लेकिन क्या आपको लगता है सीरियसली हो पाएगा अभी एड्रेस? देखें उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए जी। मुझे पर्सनली बहुत इख्तलाफ है PTI की पॉलिसी से, लेकिन फिर भी मैंडेट लेके आए हैं 5 साल का, आप उनको करने दें, उलझाएं ना उल्टे सीधे कामों में। जो कुछ एनर्जी उनकी बची है मुल्क की बेहतरी में लगाने दें उनको। आप टैक्सेशन का मामला लोग चिढ़ रहे हैं, चिढ़ इस वजह से रहे हैं कि लाजमी बात है नई चीज है, लेकिन टैक्सेशन को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन ने अवाम को मिसलीड किया इंक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर भी? इंक्रोचमेंट ड्राइव जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बेसिकली तो कोर्ट ऑर्डर पे हुई थी, कोर्ट ऑर्डर पे हुई थी बेसिकली, वो नई वीडियोस आ रही है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। PTI ने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करा है, एज अ गवर्नमेंट उसको सपोर्ट किया था, बस के आप कर रहे और सपोर्ट दे रही थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और कह रहे थे ये PTI कर रही है। आपको याद होगा वसीम अख्तर साहब ने बाकायदा इमरान खान साहब की शाबाश कबूल की है, टीवी ऑन टीवी इसके स्टेटमेंट्स चले हैं, ब्रेकिंग पे चली हैं खबरें। तो देखें वही बात है कि आप टाइम दें, अभी वो खुद उलझ गए हैं। ये हकीकत की बात है कि देखें असद उमर को हटाना इस बात के सबूत है कि परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आई बीच में, लेकिन धीरे धीरे करके ही चीज़ें बेहतर होनी हैं जी। मैं जब तक ये टैक्सेशन का प्रॉब्लम था मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं PTI पे होप हार रहा था, ठीक है, लेकिन जो अब ये एकदम से चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सख्ती से अमल करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल एक आपका जब टैक्सेशन स्ट्रीमलाइन होगा
तभी जाकर फिर आपकी पुलिसिंग पे बात आएगी, फिर अदालतों पे बात जाएगी। सादिक, जून में जितने ज्यादा एसेट्स डिक्लेरेशन हुए हैं, आपने पैकेजेस देखे डिफरेंट चैनल के ऊपर, मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। मैं भी आप समझ लें, मैं क्या वो दीवारों में चुनवाया था, वो खड्डे खोद के पैसे डाले थे, कहाँ था वो इतना पैसा? आप ये समझ लें। और अभी भी आपको बताओ ये कोई 20% भी नहीं हुआ है, 25, क्योंकि कुछ गलत फहमी में है कि जी कुछ नहीं, कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि एमनेस्टी स्कीम में हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। बिजली के कुंडे खत्म होते हैं तो लोग लाजिमी बात है चढ़ते हैं फेरी की, उनको बिजली खत्म हो रही है। इसी तरीके से जब टैक्सेशन पे ग्रिप आ रही है तो लाजमी बात है जो लोग टैक्स बचाते थे वकीलों को रिश्वत देकर। इन योर ओपिनियन कि ये गैर पार्लिमानी रिवायत तो हो सकती है लेकिन इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरी और अगर समझते हैं कि सादिक संजानी साहब जो हैं वो हो सकता है अपनी जगह रीगेन कर लें और अपनी जगह और पोजीशन पर रहें। हाँ। तीसरा सवाल मेरा आपसे इस वक्त ये है कि आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत जिस तरह क्रैक डाउन कर रही है और ऑपरेशन जारी और सारी है, जो तमाम अरकान है पॉलिटिशियंस उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हैं, क्या ये टाइमली ये काम हो जाएगा और ऑटोनॉमस इदारे जो जितने भी ऑटोनॉमस इदारे हैं वो इसको ठीक तरीके से फेयर ट्रायल के साथ जल्दी खत्म कर पाएंगे? देखिए, हम सब की तरह पीटीआई की लीडरशिप भी, जो मेन लीडर्स हैं ऊपर के, वो भी आवाम की तरह फ्रस्ट्रेट हुए हैं, वरना जरूरत नहीं है हमको बार बार ये बोलने की कि फलाना करप्ट है और फलाना करप्ट है। ठीक है, नैब अपना काम कर रहा है, अदालतें अपना काम कर रही हैं और ड्यू प्रोसेस के थ्रू लोगों को सजाएं भी होंगी, केसेस भी चलेंगे, लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है ना पीटीआई की तरफ से, फिरदौस साहिबा कर देती हैं आके, फवाद चौधरी स्टेटमेंट, ये करते हैं तो कंट्रोवर्सी पैदा होती है और अपोजिशन को मौका मिल जाता है कि देखें हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम हो रहा है। आप ना बोलें ऐसी बातें, करने दें नैब को अपना काम, आप इदारों को अपना काम करने दें। जब ऑपोजिशन सवाल उठाती है हुकूमत के ऊपर, हुकूमत में रहने के लिए कुछ चीज बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, आपको कूल डाउन भी होकर रहना पड़ता है। अब या तो इन दोनों ने ही बोलना है। मैं इसमें थोड़ा करेक्ट कर दूं। देखिए, ये हमारी मजबूर, आप वाली बात सही है कि हमें इदारों के मामलात में बोलना नहीं चाहिए, मगर जब अपोजिशन ने एलिगेशन लगाती है और अगर हम चुप रहे तो चुप पाना इकरार है जी, ठीक है ना, तो इसकी माना है कि वो ठीक कह रहे हैं, जवाब तो देना पड़ता है। एलिगेशन लगती है, उसका जवाब देना और बात है, मजबूरी है। लेकिन ये कहना प्राइम मिनिस्टर का कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे ना, तो ये पर्सनल लेवल पे बात नजर आती है और अपोजिजिशन फायदा उठाती है। तंजीला, मैं वेट करती हूँ, मेरी ये बहुत सवाल है मुझे कि मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम में एक बात सुनने के लिए होती है, अगर हम ऐसे ही सिर्फ करते रहेंगे तो पहली बात मेरी रह गई है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, क्या आप लोग प्ली बार्गेन की तरफ जाएंगे? क्योंकि एनआरओ का तो क्लियर स्टांस है, ना हुकूमत दे सकती है और ना हुकूमत देगी। दूसरा सवाल ये है इसमें कि क्या आप लोग प्ली बार्गेन की तरफ जाएंगे या फेस करेंगे इसी तरह? पहली बात, मेरे भाई ने कहा कि कराची में काम नहीं हुआ था इसलिए 14 सीटें ये ले गए। भाई मेरे, वो किसकी सीटें थी वो आप भी जानते हैं, किसकी सीटें कौन ले गया, वो अभी तक इन्हीं के पास हैं। ठीक है, जो सीट्स जो 5 साल के लिए, हाँ, वो कराची की, वो पीपल्स पार्टी की मोस्टली नहीं थी, लेकिन मिल सकती थी पीपल्स पार्टी को। दूसरी बात, आपने कायमा कमेटी के लिए कहा, किसी भी चीज़ की तजावीज़ के लिए बैठना पड़ता है। यहाँ अगर हम बैठने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि एनआरओ ले रहे हैं, एनआरओ लेना चाहते हैं। जब भी हम कहते हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं तब फौरी तौर पे सारे मुजरा शुरू हो जाते हैं, देखा इन्होंने कह दिया ना एनआरओ चाहिए, इन्हें चाहिए ये एनआरओ, ये मांग रहे एनआरओ। तो जो अभी सीएम साहब ने मीटिंग की थी कराची के पानी को लेकर, सब स्टेक होल्डर को बिठाया था, क्या इसका मतलब भी एनआरओ था? नहीं, ये बात तो ये मसला तो ना, जब भी किसी क्या नहीं, इसको आप इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी भी मसले को लेकर जब भी पीपल्स पार्टी बात करने की बात तो हो ही नहीं रही ना। यहाँ पे अगर वाटर क्राइसिस को एड्रेस करने की बात हो रही है, आपको वही बता रही हूँ कि जब भी हम कहते हैं कायमा कमेटी के लिए, आपने यही कहा था ना कि क्या हल होना चाहिए दूसरा, तो मैं वही बात कह रही हूँ। जब भी हम बात करने की, बैठ के बात करने का कहते हैं, आप कहते हैं कि एनआरओ की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात, अभी मेरी बात पूरी मेरी पूरी बात हो जाए, मेरी बारी है ना, मैं बोलूंगी। तो जब भी हम कहते हैं, आप कहते हैं एनआरओ हो गया, और ये सब जानते हैं, कोई भी यहाँ बैठे हुए चाहे यहाँ से सुनने वाले सब जानते हैं कि ये कायमा कमेटीज को सिर्फ इजलास तक महदूद करने के पीछे नीयत क्या है, ये सब लोग जानते हैं। क्या नीयत है? इसके आप पीछे व्यूअर्स को बता दें क्या क्लियर, ये वही जो 2 महीने से प्रॉब्लम चलता आ रहा है, वही प्रोडक्शन ऑर्डर्स का, वही इसी बात वो तो क्लियर किया है ना, वो तो क्लियर किया है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स में तरामीम होनी चाहिए और सबने अभी तक तरामीम हुई नहीं। जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि वही कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की हर वो बात जिसे लगता है कि उसे चेंज होना चाहिए,
तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स लेकर आ जाता है देखिए, वो आ रहा है तो उसे आप नहीं, ये बात प्रोडक्शन को- ऑर्डर का बेसिक बुनियादी रूह क्या है? जी। बुनियादी रूह है कि ये आपको उस अवामी बात को नुमाइंदा जब तक है। असेंबली में नहीं देखिए, लेके आते, असेंबली में वो अवामी लॉ पास नुमाइंदा नहीं है। होता, आप तो उस सुने तरह तो से ना आप मेरी गली भी। कूचों से करके अपनी बात को अवामी मनवा नहीं नुमाइंदा सकते। है अब आप और बोल सकते इतने हैं वोट, लाखों वोट लेके आया है तो उनकी नुमाइंदगी रह जाएगी, इसलिए प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाता है। जी। ये आके क्या करते हैं, 15 मिनट असेंबली जिस मकसद के लिए लाया जाता है, 15 मिनट वहां पे अवाम की बात करते ही नहीं है, कानून साजी की बात करते ही नहीं है, और उधर जाके मीडिया टाक कचहरियां एयर कंडीशन में बैठने आते हैं, जेल से भाग के कभी जो है ना चेंबर में किसी के बैठे होते हैं, कभी जो है ना कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। भाई आपको प्रोडक्शन ऑर्डर किस लिए? कि उस असेंबली हॉल में अपने अवाम की नुमाइंदगी करें, वो तो आप रोल करते ही नहीं है, तो उनको कैसे मिला? मिस यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि किसी चीज का मिस यूज क्या होती है? करप्शन, जी, ठीक है ना। तो हम किसी तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू नहीं आप लेकर आए, जब लॉ पास हो फिर देखिएगा। जो है ना मालियाती करप्शन है, कोई भी हम करने नहीं देंगे, किसी चीज का हम मिसयूज नहीं किसी भी करने कानून को ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सादिक, थ्रू आप बाईपास क्या होने नहीं कहेंगे देंगे। इस पर कंक्लूड देखिए, कर दीजिए। आप और मैं तो जिम्मेदार नहीं है इस चीज के। पीपल्स जी। पार्टी ने 5 साल की हुकूमत की, अभी रिसेंट टाइम्स में नून लीग ने भी की। कानून क्यों नहीं चेंज किया? कर देते कि पुलिस जब तक सबूत सादिक, फराहम नहीं तमाम करेगी तर अरेस्ट issues नहीं जो होंगे। थे आपने नहीं आप किया कर ना? देते ना, क्यों जी। नहीं किया आपने? तो फिर हम क्या करें इसके बारे में? वो आप एक दूसरे को बारी देने खुद ही की लॉ ना मेकर्स कैसे ने ये देंगे? काम करना है, पब्लिक का काम नहीं है ये। आप लॉ बनाएं कि पुलिस उस वक्त तक आपको अरेस्ट न करे जब तक सबूत ना हो, ठीक या है, नैब जब तक ना करे। ठीक है, बहुत तो आप बहुत खुद शुक्रिया change करें इसको। सादिक, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मंसूर शेख साहब आपका भी, और तंजीला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जो गुफ्तगू आज प्रोग्राम में हुई उसमें कुछ चीज़ें कंक्लूड करती चलूँ तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से कंसर्न्स हैं तमाम तर जमातों को, इनको भी एड्रेस हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब ऑस्टेरिटी कैंपेन को मद्देनजर रखते हुए ये जो है स्पीकर साहब ने जो है इसका डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कायमा कमेटी का इजलास तभी होगा जब पार्लिमानी इजलास होगा। अगर अपोजिशन को इसके ऊपर इशूज हैं, कंसर्न्स है, तो अपोजिशन इसका कोई ऑल्टरनेट देख सकती है, सब्स्टिट्यूट देख सकती है। हुकूमत ये कहती है कि ये जब हमारी कोई भी रिफॉर्म्स की बात हम करें या कोई भी बजट आने वाला हो या कोई भी इशू हो, तो उस पर हमारे साथ अपोजिशन बैठती नहीं है, बैठने से पहले ही शोर मचाती है। दूसरी जानिब अपोजिशन इसके खिलाफ कुछ और कहती है, वो कहती है कि हमारी नहीं सुनी जाती। तो अपोजिशन और हुकूमत का वन पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। बाकी मंडे टू थर्सडे कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम रहेगा। अगर आपको हमें कोई फीडबैक देना है तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी इशू के ऊपर बात करें तो वो भी हम करेंगे डेफिनेटली। मेरा ट्विटर हैंडल है ALVEENA, अलवीना AGHA आगा, अलवीना आगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।